Hello students, welcome back to SGY online classes of English. I am A.K. Dwivedi and from today you have to start your new lessons. So students, be ready, and today I will explain you in English literature chapter number 3, Journey by Night. Okay, before holidays you were explained up to chapter number 2. Now I am going to explain you from chapter number 3, that is Journey by Night. Students, this is a very interesting story of a brave boy who lived in the forest with his parents. Students, this story is written by Nora Burke. The author of this chapter is Nora Burke. Okay, he was a well-known novelist and non-fiction writer of many famous stories. Okay, let us start this chapter. So be ready and try to understand all the difficult words, meanings well in Hindi and English explanation. Let us start it. Sher Singh Bahadur lived in a mud and grass house. Students, this chapter is very, very interesting. So try to understand it seriously. Sher Singh Bahadur lived in a mud and grass house. Sher Singh Bahadur एक mud means made of earth or soil. ग्रास हाउस यानी मिट्टी और घास फूस के बने हुए घर में रहता था. विद हिज वाइफ एंड 2 sons, अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ. ओके, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी हु इज शेर सिंह बहादुर. द फादर ऑफ शेर सिंह lived in the forest with his wife and 2 children in the house made of mud and straw. Okay, यानी घास फूस के बने घर में शेर सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था. नाम क्या थे इन दोनों बच्चों के? शेर सिंह एंड कुंवर. इन लालडवानी विलेज. और कहाँ रहते थे ये? इन अ विलेज, एक गांव में जिसका नाम क्या था? लालडवानी विलेज. ओके students, try to understand once again. Sher Singh Bahadur lived in a village named Laldwani village with his wife and 2 children named Sher Singh and Kunwar. Okay, they lived in the house made of mud and straw. Like most villagers, they managed to keep body and soul together by grazing cattle and cultivating land. Like most villagers, that means many other villagers. बहुत से अन्य ग्रामीण वासियों की तरह they managed to keep body and soul together. That means they managed to survive. गुजर बसर करते थे. Keep body and soul together means manage to survive. When there is very little money, यानी जब बहुत कम पैसा हो, आपके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, उस समय हमारी लाइफ बहुत मुश्किल से सरवाइव हो पाती है. तो शेर सिंह अन्य ग्रामीण वासियों की तरह बड़े मुश्किल से गुजर बसर करता था. ओके, कैसे करता था? बाय ग्रेजिंग कैटल एंड कल्टिवेटिंग लैंड. ग्रेजिंग कैटल मीन्स जानवरों को चरा करके, एंड कल्टिवेटिंग लैंड दैट मीन्स हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, डूइंग द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर. ग्रेजिंग द एनिमल्स इन द फील्ड्स एंड बाय डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. शेर सिंह बहादुर सर्वाइव्ड इन दैट विलेज लाइक मैनी अदर विलेजर्स by grazing the animals and doing agricultural activities. Okay, and it was very difficult for them to earn.
शेर सिंह बहादुर had been given the little title. शेर सिंह बहादुर had been given the title. शेर सिंह बहादुर को टाइटल मिला हुआ था. टाइटल मीन्स पद, एक पदवी मिली हुई थी. कौन सी? बहादुर. That means he was given the title of Bahadur. Although his name was only Sher Singh, but he was known to be Bahadur. लोगों ने उसको पद दिया था. बहादुर के नाम से उसे पुकारते थे. क्यों? फॉर हिज एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी एज फेमस शिकारी. क्योंकि वो अपनी बहुत से ब्रेव एक्शंस के लिए जाना जाता था. एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी यानी बहादुरी पूर्ण, वीरता पूर्ण कारनामे करने की वजह से लोगों ने उसका नाम बहादुर और जोड़ दिया था. फेमस शिकारी, दैट मीन्स वेल नोन हंटर. वो बहुत एक प्रसिद्ध शिकारी था, जाना पहचाना शिकारी था, जाना जाता था. दिस वॉज द रीजन मोस्ट हंटिंग एंड फोटोग्राफी एक्सपीडिशंस. और इसीलिए यही वो वजह थी कि ज्यादातर जो हंटिंग और फोटोग्राफी के एक्सपीडिशंस होते थे, यानी शिकार पे जाना होता था लोगों को, या जंगल में वाइल्ड एनिमल्स की फोटोग्राफी के लिए जाना होता था. एक्सपीडिशंस मीन्स होता है जर्नीज अंडरटेकन बाई ग्रुप ऑफ पीपल with a particular aim or purpose, like educational expedition etc. military expedition, जिसमें सेना इधर से उधर मूव करती है, या एजुकेशनल हमारा टूर होता है तो हम बहुत जगह घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं. तो जब भी कोई फोटोग्राफी का एक्सपीडिशन होता या हंटिंग एक्सपीडिशन होता तो क्या होता? Ask them to accompany them into the jungle. तो ask them, गांव के जितने भी लोग थे, शेर बहादुर से पूछा जाता कि वो उनके साथ जंगल में चले. ओके. शेर सिंह बहादुर was a very famous photographer as well as a hunter. That's why most of the villagers, whenever they went for hunting or photographic expeditions in the forest, they requested Sher Singh Bahadur to accompany them. Okay. It was sometime in the day that Kunwar took ill. एक बार क्या होता है? It was sometime in the day, एक दिन की बात है, that Kunwar took ill. शेर सिंह बहादुर का जो यंगेस्ट सन था, जिसका नाम क्या था? कुंवर. टू किल, दैट मीन्स ही गॉट इल, ही फेल इल. वो बीमार पड़ गया. देयर फादर हैड गॉन इनटू द जंगल विद अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ग्रुप अलॉन्ग विद ऑल द मेन फ्रॉम द विलेज, बीटिंग ड्रम्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट टू स्केयर एंड स्कैटर द एनिमल्स आउट ऑफ हाइड. एक बार क्या होता है, गांव में शेर सिंह बहादुर का यंगेस्ट चाइल्ड कुंवर सिंह बीमार पड़ गया. और उस समय उनका पिता, दैट मीन्स शेर सिंह और कुंवर के पिता शेर सिंह बहादुर, हैड गॉन इनटू द जंगल, जंगल में गए हुए थे. ही वॉज नॉट एट होम, ही वॉज नॉट इन द विलेज, ही वॉज इन द फॉरेस्ट. क्यों गए हुए थे? विद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, for taking photographs of wild animals with the villagers. Okay, यानी गांव के लोगों के साथ शेर सिंह बहादुर उस समय गांव में नहीं थे, बल्कि वो गांव के लोगों के साथ जंगल में जंगली जानवरों की फोटोग्राफी करने के लिए गए हुए थे. और गांव के लोग कैसे उनके साथ थे? बीटिंग ड्रम्स, वो ढोल नगाड़े बजा रहे थे. दैट मीन्स दे वर प्लेइंग विद वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स टू स्केयर द वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों को डराने के लिए, अपनी हाइडिंग प्लेस की जगह से भगाने के लिए वो ढोल नगाड़े पीट रहे थे ना. सो दैट शेर सिंह बहादुर माइट टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ दोज वाइल्ड एनिमल्स. ओके. तो जब कुंवर सिंह गांव में बीमार पड़ा
तो शेर सिंह बहादुर अपने गांव में नहीं था, बल्कि वो ग्रामीण वासियों के साथ जंगल में जंगली जानवरों की फोटोग्राफी करने के लिए गया हुआ था और गांव के लोग उसका साथ दे रहे थे जंगली जानवरों को अपने छिपने की जगह से भगाने में। वो ढोल नगाड़े वगैरह इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे। ओके, इट इज सेड, ऑथर सेज दैट वन डे व्हेन कुंवर सिंह got seriously ill, Sher Singh Bahadur was not in his village, but he was out of his village with the villagers in the forest for having photographs of wild animals, and the most of the villagers were helping him. They were playing with various musical instruments so that they could scare the wild animals to come out from their hiding places. Little कुंवर lay on चारपाई, छोटा बालक कुंवर चारपाई पर लेटा हुआ था। चारपाई एक मतलब गांव में लोग चारपाई बोलते हैं, यूजुअली दे लाई ऑन द चारपाई। तो groaning means कराहना। He was making sound, deep sound made when the pain. When you are having some pain, you groan. जब हमारे अंदर, हमारे शरीर में, बॉडी में कहीं पेन होता है तो हम कराहते हैं। तो कुंवर सिंह was having some pain in his body. That's why he was crying loudly. With stomach pain, और उसका दर्द कैसा था? पेट में। He was having stomach ache. उसके पेट में दर्द था। His suffering was clear to his mother. Clear to his mother, that means his mother knew it well, that his son Kunwar was having stomach pain. यानी कुंवर की माँ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता था कि उसके बेटे को पेट दर्द है। Who listened to his cries helplessly, but her mother was helpless. She was not able to do anything because in the village there was probably no any doctor available. There was no any hospital. Medical aid was not available there. She was helpless. She didn't know what she should do to reduce his pain. उसे नहीं मालूम था कि वो अपने बेटे का दर्द कम करने के लिए क्या करे। वो बिल्कुल असहाय थी। 12-year-old Sher Singh helped his mother wring out rags in boiling water. शेर सिंह जो कुंवर का बड़ा भाई था, उसने क्या किया? वो 12 years old था। helped his mother, उसने अपनी माँ की मदद की। कैसे मदद की? wring out rags. wring out means निचोड़ना, squeeze करना। to squeeze and twist, to squeeze and twist like clothes. जैसे कि कपड़े निचोड़े जाते हैं, तो फटे कपड़े आदि के टुकड़े को रैग्स मीन्स टॉर्न क्लोथ्स, उस कपड़े को वो बॉइल्ड वाटर में भिगो करके उसको निचोड़ता और फिर क्या होता? प्लेस्ड देम ऑन कुंवर्स स्टमक फॉर रिलीफ। वो गरम, हल्का सा गर्म कपड़ा कुंवर के पेट पर उसकी माँ रख रही थी। इस प्रकार से शेर सिंह अपनी मदर की हेल्प कर रहा था। Okay, Sher Singh, who was the eldest son of Sher Singh Bahadur, helped his mother in the village by dipping the cloth in boiled water, and then his mother placed this cloth on the stomach of Kunwar Singh so that he may feel kind of relief, some relief. देन क्या होता है? कुंवर मच यंगर देन शेर सिंह। कुंवर सिंह शेर सिंह से बहुत छोटा था। कुंवर सिंह शेर सिंह से बहुत छोटा था। एंड हैड गॉन ऑलमोस्ट साइलेंट। हैड गॉन ऑलमोस्ट साइलेंट, वो शांत था। बिकॉज ही वॉज हैविंग मच पेन इन हिज स्टोमक, उसके पेट में बहुत दर्द था और अब वो शांत हो गया था। एंड हिज आईज हेल्ड ग्लासी फॉर ऑफ स्टेयर, और उसकी जो आंखें थी हेल्ड ग्लासी, दैट मीन्स देयर वाज नो मूवमेंट,
देयर वॉज नो एक्सप्रेशन, हिज आईज वर नॉट ब्लिंकिंग, उसकी आंखें एकदम ग्लास की जैसे स्टिल हो गई थी ना। ही वॉज लुकिंग कॉन्स्टेंटली एट समथिंग, लगातार किसी एक जगह देखे जा रहा था, विदाउट ब्लिंकिंग हिज आईलिड्स। ओके, मदर लेट मी रन एंड गेट फादर, मदर लेट मी रन एंड गेट फादर सेड शेर सिंह। शेर सिंह ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की, माँ ऐसा करो, मुझे परमिशन दो, मैं पिताजी को बुला लाऊं। शेर सिंह ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि माँ वो उसे जंगल में जाने की अनुमति दे, वो पिता को ये सूचना देगा और पिता को साथ लेकर आएगा। एट दिस क्रिटिकल स्टेज शेर सिंह रिक्वेस्टेड हिज मदर टू अलाउ हिम टू गो टू द फॉरेस्ट एंड टू ब्रिंग हिज फादर बैक टू विलेज। इट मे टेक यू डेज टू फाइंड हिम, द जंगल इज डेंस, हिज मदर रिप्लाइड। लेकिन उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा इट मे टेक यू डेज, आपको बहुत समय लग सकता है। इट मे टेक यू डेज, दैट मीन्स इट माइट टेक सम डेज टू सर्च हिज फादर इन द फॉरेस्ट, बिकॉज द फॉरेस्ट वॉज वेरी डेंस एंड लार्ज, इट वॉज स्प्रेड इन अ लार्ज एरिया, इट वॉज वेरी डेंस, so it might be very difficult to search his father and it might take some days. उसकी माँ ने कहा, बेटा आप जंगल में अगर पिताजी की तलाश करने जाएंगे, जंगल बहुत घने हैं और विशालकाय हैं, हो सकता है तुम्हें कुछ दिन लग जाए उनकी तलाश करने में, इसलिए कुंवर नीड्स अ हॉस्पिटल। उसकी माँ ने उसको मना कर दिया और क्या कहा, कुंवर needs hospital, that means कुंवर needed to be hospitalized, कुंवर needed medical help instantly, immediately। उसकी माँ ने कहा, बेटा कुंवर को यानी तुम्हारे छोटे भाई को तुरंत ही मेडिकल हेल्प की जरूरत है, इसको हॉस्पिटलाइज करवाना बहुत आवश्यक है। तो ही मस्ट बी टेकन टू कालाघाट, but in the village there was no hospital. Hospital was situated at Kalaghat, which was situated at some distance away from his village. तो कालाघाट में हॉस्पिटल था और ये कालाघाट उसके विलेज से लगभग 50 माइल्स की दूरी पर था। ओके, शेर सिंह knew that the hospital at Kalaghat was 50 miles away. शेर सिंह को मालूम था कि हॉस्पिटल उसके गांव से 50 माइल्स की दूरी पर था। ओके, द हॉस्पिटल एट कालाघाट वाज नॉट नियर बट इट वाज एट द डिस्टेंस ऑफ 50 माइल्स फ्रॉम हिज विलेज। इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर हिम। एंड अक्रॉस द जंगल 2 rivers एंड सम डिस्टेंस अहेड। इस हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना था, अक्रॉस द जंगल, दैट मीन्स ही हैड टू क्रॉस द जंगल, देन 2 rivers ऑन द वे, मार्ग में 2 नदियां पड़ती थी, एंड सम डिस्टेंस अहेड, इसके बाद कुछ दूरी तय करने के पश्चात ही कुड रीच टू कालाघाट हॉस्पिटल। सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कैरी कुंवर सिंह टू दिस हॉस्पिटल when he was only 12 years old. So it was very difficult task for him. शेर सिंह क्या करते हैं, all the men of the village are away, mother, and you have to stay here to mind the cattle. शेर सिंह ने डिसाइड किया कि वो अपने छोटे भाई को हॉस्पिटलाइज करवाएगा। उसने अपनी माँ को सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, all the men of the village are away। उसने कहा, माँ गांव के ज्यादातर लोग बाहर हैं, पिताजी के साथ गए हुए हैं, एंड यू हैव टू स्टे हियर एंड माइंड द कैटल एंड लैंड। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हें गांव में यहीं घर पर रुकना है, यहाँ कैटल यानी एनिमल्स की केयर करनी है और यहाँ खेतों की भी देखभाल करनी है। आई विल टेक कुंवर माई सेल्फ। और उसने कहा कि वो कुंवर को स्वयं
अकेला ही कालाघाट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराएगा. ओके, सीइंग दिस क्रिटिकल कंडीशन, शेर सिंह रिक्वेस्टेड हिज मदर दैट ही शुड बी अलाउड टू कैरी हिज यंगर ब्रदर कुंवर सिंह टू कालाघाट हॉस्पिटल himself, and he advised his mother that she should stay at the village and should take care of the animals and land when almost all the villagers were out of the village. He is too big for you. How will you manage, son? शेर सिंह की मदर ने कहा, बेटा तुम्हारी एज ही क्या है, 12 साल का था बालक. उसने कहा, बेटा तुम जैसे छोटे बालक के लिए ही इज टू बिग फॉर यू, अपने इस भाई को ले जाना बहुत कठिन होगा. शेर सिंह भी बहुत बड़ा नहीं था, तो उसकी मदर ने कहा, बेटा तुम अपने भाई को, तुम्हारे लिए ये भाई मतलब पर्याप्त इसका वजन है, अकेले कैसे ले जाओगे, ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा. हाउ विल यू मैनेज सन, बेटा तुम कैसे अकेले मैनेज करोगे. आई डोंट थिंक यू विल गेट देयर. उसकी माँ ने कहा, मुझे नहीं लगता, मतलब उसे नहीं लगता है कि शेर सिंह अकेले ये काम कर सकता है. ओके, हर वॉइस ड्रॉप्ड टू अ सैड विस्पर. उसकी आवाज यानी शेर सिंह की मदर में ड्रॉप्ड टू अ सैड विस्पर. सैड मीन्स sorrowful, विस्पर मीन्स स्टार्टेड क्राइंग स्लोली एंड सॉफ्टली. उसकी माँ सुबकने लगी. ये सब मन में विचार जैसे आया कि शेर सिंह अकेले कैसे अपने छोटे भाई को इतनी दूर हॉस्पिटलाइज करवाएगा. ये सब सोच करके वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और सुबकने लगती है. द मदर ऑफ शेर सिंह, व्हेन शी रियलाइज्ड दैट देयर इज when she realized that it was a very difficult task for Sher Singh to hospitalize Kunwar Singh to the Kalaghat hospital, she was extremely afraid. She was extremely upset because the way to Kalaghat hospital was very difficult. He had to go through dense forest and had to cross to long and deep rivers. So it was a very risky job. That's why she was extremely upset. शेर सिंह was determined, लेकिन शेर सिंह ने पक्का इरादा कर लिया था. But शेर सिंह had firmly decided to carry his brother Kunwar Singh and to hospitalize him at Kalaghat hospital. I have to go, mother. There is no time to lose. शेर सिंह ने पक्का इरादा कर लिया था और अपनी माँ से कहा, मदर हमें समय गवाना नहीं है, व्यर्थ नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, हमें जल्दी से अपने भाई को वहां ले जाना है. इट वॉज ऑलमोस्ट इवनिंग, लगभग शाम होने को थी. हिज मदर मेड अ स्लिंग फ्रॉम हर साड़ीज. उसकी माँ ने अपनी साड़ियों का एक स्लिंग बनाया. स्लिंग मीन्स अ काइंड ऑफ स्ट्रैप, फ्लेक्सिबल स्ट्रैप, पट्टियां, बेल्ट टाइप की. ओके, क्लॉथ की होती है या और किसी चीज की हो सकती है. एक फ्लेक्सिबल बेल्ट बनाया अपनी साड़ी का, ताकि कुंवर को उसमें पीठ पर बांध करके लटकाया जा सके. एंड प्लेस्ड हिम इन द स्लिंग ऑन कुंवर्स बैक. और इस स्लिंग में कुंवर को शेर सिंह की पीठ पर पीछे रख दिया, बांध दिया. हिज मदर वॉज राइट. हिज मदर वॉज राइट. उसकी माँ सही थी. कुंवर वॉज हैवी. कुंवर बहुत हैवी था, उसका वेट था. एंड शेर सिंह वंडर्ड इफ ही हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड सी. और शेर सिंह को बड़ा वंडर्ड मीन्स एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, आश्चर्य हो रहा था. क्या आश्चर्य हो रहा था? इफ ही हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू. बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू मीन्स टेकन ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल. उसे लग रहा था कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी चाहिए उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी
That means he was too young and his brother was too heavy for him to carry such a long distance. यानी उसे लग रहा था कि इतनी लंबी यात्रा पर अकेले अपने भाई को इतना मतलब जो जिसका बर्डन है बहुत डिफिकल्ट होगा. Sher Singh realized finally that it was a very difficult task to carry his younger brother Kunwar Singh, whose weight was too much for him. Okay, student, your first part of the story is over. Now, next day in my next video, I will start next part of this story. Till then, revise this chapter again and again. Watch this video again and again, and try to understand all the words, meanings, explanation well. Okay, thank you for attending the class. Hello student, welcome to my online chemistry classes for class 8. Student, today we start our third chapter, that is the element, compound and mixture. This is our third chapter. क्या है थर्ड चैप्टर? इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड्स एंड व्हाट इज मिक्सचर, और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो स्टूडेंट, तो इसको स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस, आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज मैटर. मैटर क्या होता है, और मुझे पता है सब बच्चों को पता होगा कि मैटर क्या होता है. सो स्टूडेंट, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग which have mass and occupy space. सबको पता होगा मैटर क्या है. मैटर कुछ भी हो सकता है जिसके पास मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, लाइक मार्कर, लाइक मील, लाइक बोर्ड, लाइक फैन, लाइक डस्टर, लाइक एयर, एनीथिंग. मैटर इज एनीथिंग which have mass and occupy space. So further student, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर तो हो गया. मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? Okay, so generally matter is divided into two parts: pure substance and impure substance. And impure substance is also known as mixture. So matter is generally classified into two parts: pure substance and impure substance. Impure substance को हम लोग और क्या बोलेंगे? Mixtures बोलेंगे. क्यों बोलेंगे? पता चल जाएगा. Now we start pure substance. अब हम लोग पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. सो स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनाइट फॉर्मूला एंड डेफिनाइट प्रॉपर्टीज. ऐसे सारे सब्सटेंस जिनके पास उनका खुद का फिक्स्ड फॉर्मूला हो, उनको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे. ओके, नाउ एग्जांपल क्या हुआ? अब मैंने आपको बोल दिया जाके आप आयरन बॉक्स लेकर, तो आप एक छोटा सा आयरन बॉक्स लेके आए, कोई बहुत बड़ा सा आयरन बॉक्स लेके आया, कोई छोटा सा आयरन बॉक्स लेकर के आया. लेकिन जब मैंने बोला कि इस आयरन बॉक्स का सब बच्चे फॉर्मूला बताओ, तो आप सब क्या बोलोगे? Fe. आयरन बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Fe. चाहे छोटा सा आयरन बॉक्स हो, चाहे बड़ा सा आयरन बॉक्स होगा, सबका फॉर्मूला क्या है? Fe है. तो आयरन क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस. इसके पास इसका खुद का फिक्स्ड फॉर्मूला है. ओके, अब मैंने आपको बोलिए आप कौन सी गैस अपने ब्रीथिंग में यूज करते हो, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2. अब बच्चों, चाहे हम कानपुर में रहें, चाहे हम किसी और सिटी में जाएं, चाहे हम किसी और कंट्री में चले जाएं, हम कौन सी गैस यूज करेंगे ब्रीथिंग के लिए? ऑक्सीजन. और उसका फॉर्मूला ऑलवेज क्या होगा? O2. तो इसका फिक्स्ड फॉर्मूला है, इसको ये चेंज नहीं हो रहा है. तो जिसके पास फिक्स्ड फॉर्मूला होता है वो सारे सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों? प्योर सब्सटेंस होते हैं. ओके, नाउ अदर एग्जांपल लाइक सॉल्ट. अब मैंने आपको बोला बच्चों से, ठीक है आप सारे बच्चे सॉल्ट लेकर के आएंगे, तो एक बच्चा सॉल्ट लेके आया, मैं अपने घर से भी लेके आई, दूसरा बच्चा सॉल्ट लेके आया. अब मैंने बोला कि फॉर्मूला पता, तो आप कहीं से भी सॉल्ट लेके आओ, किसी के यहाँ से भी लेकर के आओ, सबका फॉर्मूला क्या होगा? NaCl. तो सॉल्ट हैव फिक्स्ड फॉर्मूला. क्या है इसका फॉर्मूला? NaCl फॉर्मूला है. कहीं से भी आप सॉल्ट लेके आओगे, सॉल्ट हैव 1 सोडियम एटम एंड 1 क्लोराइड एटम, 1 Na एंड 1 Cl. मिक्स करा तो सॉल्ट बन गया. तो सॉल्ट का एक फॉर्मूला होता है. मैंने बोला आप वाटर लेके आओ, तो कोई बच्चा नदी से वाटर ले आया, कोई अपनी फ्रिज का वाटर लेके आया, कोई तालाब से वाटर लेके आया, कोई कहीं से भी वाटर लेके आया. तो वाटर का फॉर्मूला ऑलवेज, सबके सैंपल का फॉर्मूला क्या होगा?
सबके सैंपल का फॉर्मूला होगा H2O। आप कहीं का भी वाटर लेकर के आइए, इट ऑलवेज कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। सो ऑल दोस सब्सटेंस व्हिच हैव फिक्स्ड composition, which have fixed formula and have definite properties is known as pure substance. For example, water, for example iron, for example oxygen, nitrogen, carbon dioxide, जिनका भी आप फॉर्मूला जानते हो वो सारे क्या बच्चे होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। now the definition is a homogeneous material. What is the meaning of homogeneous? मतलब एक सा, आप एक जैसे होंगे सारे। मैंने बोला ना, चाहे आप बड़ा सा आयरन ले लो चाहे छोटा सा आयरन ले लो, सबका फॉर्मूला क्या होगा, Fe ही होगा। तो होमोजेनियस जो एक जैसे बने होंगे, अ होमोजेनियस मटेरियल व्हिच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड, जिसके पास केवल एक जैसे पार्टिकल्स हों, एंड हैव डेफिनाइट प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ऑल सब्सटेंस व्हिच हैव फिक्स्ड फॉर्मूला, which have fixed formula, या बोल सकते हो which have fixed composition, जिनका composition never changed, कभी भी बदलेगा नहीं, कभी भी नहीं बदलेगा, वो सारे सब्सटेंस क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे। एग्जांपल बहुत सारे हैं। नाउ वी मूव टू बच्चों मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होते हैं? अब मैंने क्या बोला आपसे, वाटर लेके आओ, वाटर प्योर है, अभी सीखा हमने। मैंने आपको बोला सॉल्ट लेके आओ, सॉल्ट भी प्योर था, और दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने 2 प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दिया। अब जब मैंने मिक्स कर दिया, मैंने मिक्स क्या किया, वाटर प्लस सॉल्ट, तो हमारे पास क्या बन के आया उस ग्लास पे, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर का क्या कोई फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जिनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है वो सारे क्या कहलाते हैं, प्योर का अपोजिट इम्प्योर सब्सटेंस। लेकिन मैंने मिक्स किया है ना, इसलिए impure substance is also known as mixture. I hope you understand well what is the meaning of mixture. अब मैंने चलो भी आपको 2 प्योर सब्सटेंस बना दिया, अब मैंने बोला इसमें शुगर भी डाल दो। शुगर का फॉर्म, शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस, यस इट हैव फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। शुगर का खुद का फॉर्मूला है, तो शुगर इज आल्सो प्योर सब्सटेंस। अब मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया, वाटर लिया, उसमें आपने सॉल्ट डाला, उसमें आपने शुगर भी डाल दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 प्योर को मिलाया जाए। When 2 or more than 2 pure substance are mixed together, उनको मिला दिया, बस बच्चों को केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ओके? केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन हो जाएगा, ओके? और कोई केमिकल रिएक्शन ना हो तो वो आपको क्या कहलाता है, मिक्सचर। डेफिनेशन क्या होगी, इफ 2 or more than, यहाँ पे आप प्योर सब्सटेंस में ले सकते हो, प्योर सब्सटेंस mixed together in any proportion। any proportion मतलब किसी ने 2 स्पून सॉल्ट डाला और 1 स्पून शुगर डाल दिया, मैंने 3 स्पून शुगर डाल दिया और 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया। तो any proportion, कोई भी उठा के बस ऐसे डाल देना है। proportion, in any proportion do not undergo any chemical change, must be remember that कि हम जो मिला रहे हो उसके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। अगर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो कुछ नया बन जाएगा, और नया जब बनेगा केमिकली तो उसका कोई फॉर्मूला होगा, और जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, प्योर बन जाएगा। तो मिक्सचर में हमेशा ये बात याद रखनी है कि 2 or more than 2 प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, मिला दिया, बट डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, कोई भी उनमें केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी एक जैसी नहीं होती है। भाई जब आपका कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ही नहीं है तो उसका प्रॉपर्टीज भी कोई फिक्स्ड नहीं होगी। इज नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज मिक्सचर। अब स्टूडेंट बात आती है कि मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं, ओके? कैसे 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस। तो आज मैं आपको इन दोनों वर्ड का मतलब बताऊंगी। मिक्सचर समझ में आ गया कि 2 or more than 2 प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, मिक्स कर दो आप तो वो क्या बन जाएगी, बट केमिकली चेंज नहीं होना चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, बस मिक्स कर दो उठा करके, तो वो इम्प्योर बन जाएगा। इम्प्योर को हम और क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने मिक्स किया है तो उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। अब मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। का बात समझिएगा, मैंने क्या किया, मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया, ग्लास ऑफ वाटर में मैंने सॉल्ट डाल दिया, शुगर भी डाल दिया और मिक्स कर दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है?
मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर। बट स्टूडेंट, क्या आप विजुअली आइडेंटिफाई घर पे करके देखना, क्या आप आंखों से देख के बता सकते हो कि ये इम्प्योर है? वो तो हमको वाटर जैसा ही लगेगा देखने में, हम अपनी आंखों से देख के नहीं पहचान सकते हैं कि जो मैम ने ग्लास ले रखा है उस पानी में सॉल्ट भी मिक्स है और शुगर भी मिक्स है। बट रियल में क्या है? रियल में तो वो मिक्सचर है, क्योंकि हमने उसमें 3 प्योर सब्सटेंस को मिला दिया है, मिक्सचर बन गया है, वो इम्प्योर हो चुका है। बट आप विजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो जब हम मिक्सचर को विजुअली मतलब आंखों से देख के पहचान ना पाए कि इसके अंदर क्या क्या मिक्स है, तो ऐसे इम्प्योर मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। आई बात समझ में? अब मैंने क्या किया, मैंने उसी ग्लास में सैंड मिला दी, इम्प्योर हो गया। सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2, प्योर हुआ। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, प्योर हुआ। दोनों प्योर को मिला दिया, बन गया इम्प्योर, मिक्सचर बन गया। अब क्या मिक्सचर बन गया? मिक्सचर तो इम्प्योर हुआ, लेकिन आप विजुअली आइडेंटिफाई कर लोगे, आप देख करके बता दोगे ये तो मिक्सचर है, क्योंकि इसमें तो सैंड मिला हुआ है, सैंड दिख रही है आपको। तो ये बच्चों कौन सा एग्जांपल हुआ? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जिनको ऐसा मिक्सचर जो हम विजुअली आइडेंटिफाई कर ले, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट, ऐसे कंपोनेंट जो उसके अंदर प्रेजेंट है तो उनको होमोजीनियस बोलते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, अच्छा बताइएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर जैसे मैंने वाटर लिया और ऑयल लिया, ऑयल का भी फॉर्मूला होता है फैट्स, फैट का फॉर्मूला होता है, और वाटर का भी फॉर्मूला होता है। दो प्योर सब्सटेंस लिए, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब ऑयल तो आपको उसमें दिख जाएगा ना, वो भी किसका एग्जांपल होगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होगा। तो a mixture in which we can easily identify the component present in it, it known as heterogeneous. And when we cannot visually identify the component present in it, that type of mixture is known as homogeneous mixture. So student, I hope you understand what is matter, पहले ही सब जानते थे, and what is the classification of matter, that is pure substance and impure substance. Impure substance is also known as mixture. What is pure substance? Substance which have fixed formula and have fixed composition and fixed definite properties is known as pure substance. And what is mixture? When two or more than two pure substance mixed together, that type of substance is known as mixture. Mixture is also have two types, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous when we can't visually identify the component present in the mixture, and the heterogeneous when we easily identify the component present in it. So this is all about today. In next video we start further classification of matter, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे. Thank you. Good morning student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, today we are going to start a new chapter which is force and pressure. Force and pressure. Student, this chapter is divided into 4 units. Now today we will discuss its first unit, which is turning effect of force and pressure. So firstly we will discuss with force. Student, force is a cause when applied on a stationary body which is free to move, can produce motion in it, and if applied on a moving body can changes both speed and direction of a motion. For example, a moving car slows down on applying brakes on it, and a grass roller initially at rest when pulled begins to move, etc. So by all these above statement we can say that force is that cause
body, the state of a body, whether it is in rest or motion, or changes the size or shape. The size or shape of the body. Student, force is that cause which changes the state of a body, whether it is in rest or motion, or changes the size or shape of the body. Now its unit in SI system, the unit of force is Newton. Now turning effect of a force. Turning effect of a force. Student, the turning effect of a single force about a fixed point, is called moment. The turning effect of a single force about a fixed point is called moment. For example, like a door opening, around a fixed hinge, and a spanner turning around a fixed nut, etc. Student, like a door opening around a fixed hinge, and another example is a spanner turning around a fixed nut. Student, the turning effect of a force on a body depends on two factors, which are, first point is the applied force, and second point is the perpendicular distance from the fixed point, to the line of action of the force. Student, the turning effect on a body depends on two points. First is the applied force, and second is the perpendicular distance from the fixed point to the line of action of the force. Now student, moment of force. Student, the moment of a force
the product of applied force and perpendicular distance of the force from the pivoted point. Student, the moment of a force is equal to the product of applied force and perpendicular distance from the pivoted point. So we can write moment of force equal to F into D. Here F is the applied force and D is the perpendicular distance from the pivoted point. Now student, unit of moment of force. In SI system, the unit of moment of force is Newton into meter. Because the formula of moment of force is F into D. Here the unit of force is Newton and the unit of distance is meter. So the unit of moment of force is Newton into meter. Now students, some numerical relating to moment of force. So first numerical is the hinge of a door is at a distance of 40 centimeter from the point of application of force. If a force of 20 Newton is applied, what is the magnitude of moment of force? Student, in this question, force is 20 Newton. Force is 20 Newton and distance from the origin is 40 centimeter. So D is equal to 40 centimeter. Student, in this distance is given in centimeter. So firstly we will convert centimeter into meter because the unit of moment of force is Newton into meter. So 1 centimeter equal to 1 upon 100 meter and 40 centimeter equal to 40 upon 100. 0.4 meter. So distance equal to 0.4 meter. And as we know that the formula of moment of force is force into distance. Moment of force equal to force into distance. Here force is 20 meter and distance is 0.4 meter. After multiplying, we get 8 Newton into meter. Now students, second numerical. What is the perpendicular distance between the force and the turning point if a force of 25 Newton produces a moment of force of 12.5 Newton into meter? Student, in this question, force is 25 Newton and moment of force is 12.5 Newton into meter.
0.5 Newton into meter. Student, here we have to find the perpendicular distance from the pivoted point. Student, this is the symbol of perpendicular. As we know that moment of force is force into distance from the pivoted point. Here force is 25 Newton and perpendicular distance is, and moment of force is 12.5. After dividing, we get 0.5 meter. So the perpendicular distance from the pivoted point is 0.5 meter. Student, today's class is over. Thank you. Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, I have discussed in previous chapter 1st and chapter 2nd. How are you students? I hope you are fine and also healthy. Today I will explain chapter 3rd, American Civil War. In previous chapter, I have discussed in Indian Revolution, French Revolution, and now I will explain American Civil War. So, students, identify American Civil War. What means Civil War? Civil Wars का क्या मतलब है? So, the Civil War is time period was 1861 to 65. The Civil War यानी American Civil War time period was 1861 to 65. American Civil War, also known as the war between states. Thus we say the American Civil War is also known as the war between the states. The state यानी this war is between the states and other states of the America. And it began meaning American Civil War began in 1861. अमेरिकन का जो सिविल वार था वो 1861 में स्टार्ट हुआ and lasted till May 1865 and lasted और अमेरिकन का सिविल वार जो लास्टेड हुआ था मई 1865 में. It was one of the important event in American history. Thus we say that American Civil War was the important event in American history because this armed conflict started over the issue of slavery. Because this was conflict, ये जो संघर्ष था, it started over the issue of slavery. स्टार्ट हुआ था issue of the slavery. slavery ही इसका सबसे बड़ा issue था. Between the United States and the Southern States, the American Civil War was between the United States and Southern States.
and seceded from the Union and formed the Confederate State of the America. Confederate State of the America means slavery in 11 southern states of USA which broke away in the Union. मैंने ऐसे 11 states in American में थे जो broke away, that means in forming Confederate States of America, मैंने जिसे संधि स्टेट के रूप में अमेरिका में जाना जाता है. The Civil War cost more American lives than any other war in the history. The Civil War cost माने Civil War cost माने Civil War cost means कि more American माने ऐसे more Americans थे जो lives than any other war in history. माने जो any other war माने जो we discuss about या we talk about in other war of in history and in American history, the Civil War was fought between the industrialized northern states. माने thus we say this civil war was fought between industrialized northern states. माने ये जो civil war थे वो north states से and agriculture and south states माने अमेरिका के south state के बीच में बटी थी. The war threatened the unity. माने war माने जो ये युद्ध था वो क्या था? Threatened the unity माने केवल unity को threatened यानी धमकी देना था. And integrity of the nation माने और पूरी तरीके से integrity of the nations था. However माने जबकि due to the dynamic leadership माने in that time Abraham Lincoln was the president and he followed as a dynamic leadership. But in that time, Abraham Lincoln was the president of America and he stepped in due to the dynamic leadership. So the Union was saved. But thus we say, according to the president of Abraham Lincoln, the Union was saved. But वहाँ की जो Union थी वो पूरी तरह से सेव थी. The next topic is causes of civil war. How many causes of civil war? But in the American Civil War first causes is slavery. Slavery यानी सामंतवादी व्यवस्था. यानी दासता क्या थी? In that time, American people in early 18th century, the northern states turned from farming the manufacturing. In that time, American people who grow the cultivate, and after that time, they started to manufacturing many things. American people ने उस समय कई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी. बट इन द साउथ, लेकिन इन साउथ में द फार्मिंग यानी जो कृषि थी रिमेन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. इन साउथ अमेरिकन फार्मिंग यानी कृषि जो कल्टीवेशन यानी जो एग्रीकल्चर थी रिमेन दोबारा फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन वहां के लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गई थी. द साउथर्न फार्मर्स साउथ के जो फार्मर्स थे ग्री कॉटन. एट फर्स्ट द ग्री कॉटन सबसे पहले वे कॉटन ग्रो करते थे एंड tobacco and they used to slave to work in their fields. In that time they also used to work in their fields as a slave. So people were so angry for it. That time there were cultural differences. But how many cultural differences? So in that time American people, there were cultural differences too between states. Many states which are many cultural differences in that time, they had differences of opinion. Because in these people in that time these people were the differences of opinion. उनके opinions में differences थे with
got to issue of the slavery, so the slavery was the issue of him as well. माने इसलिए slavery जो कि सबसे बड़ा issue बन चुका था. The privilege of slavery in the southern and in South America, the slavery was the most important. And the slavery was the most important features of in that time because it became a controversial issue. But it became a strong issue in American and South American, and in northern states of America, they were the complicated, prosperous than the southern. But in that time, north was more prosperous than that of south. States, southern states, due to the retreat of industrial progress and trade, because in that time northern have so many progress and trades in that time. Now we discuss how many causes. The causes of the civil war in that time, causes सबसे बड़ा जो causes था civil war का वो cause क्या था? Slavery था. Because in early 18th century के early में northern states जो northern states of America थे turn from farming to manufacturing. They started at first at industry. I mean, they worked as to manufacture many good things. But in south were not more progress than that of north. So the people grow many cultivation and so the occupation, the main occupation of the northern people and in southern people was only farming. So the condition of the south is more poor than that of northern. Is the differences because many सुस्वागतम. मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बच्चों, आज मैं क्लास 8 इंग्लिश मीडियम कुछ चैप्टर 3 स्वास्थ्य नियम पढ़ाने जा रही हूँ. Tomorrow I will discuss about चैप्टर 3 स्वास्थ्य नियम के अंतर्गत पेज नंबर 14 पे देखिए. पेज नंबर 14. इसमें बच्चों प्रथम पुरुष विधिलिंग लकार, ये जो संस्कृत की पंक्तियां दी हुई हैं ये विधिलिंग लकार की सारी पंक्तियां हैं. और आपको मालूम होना चाहिए कि विधिलिंग लकार का प्रयोग हम चाहिए अर्थ में करते हैं. जैसे कि हमें पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, ऐसी पंक्तियां जिनमें लास्ट में चाहिए अर्थ आता है. तो उस चाहिए अर्थ के लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं. तो इस चैप्टर में आप विधिलिंग लकार के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ ये पंक्तियां प्रथम पुरुष की हैं, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष. संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथमा पुरुषा, मध्यमा पुरुषा और उत्तमा पुरुषा. तो देखिए आप इन संस्कृत पंक्तियों का अर्थ. छात्रः विद्यालयं गच्छेत्, छात्र को विद्यालय जाना चाहिए. देखिए गच्छेत में हलंत जरूर होगा, इस बात का ध्यान रखें. संस्कृत में हलंत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इस छोटे से मान को ऐसे अन्यथा ना लें, क्योंकि अगर आप बाई चांस यहाँ हलंत नहीं लगाते हैं तो आप जरा विधिलिंग लकार का रूप देखें. गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, यानी ये गच्छे शब्द 2 बार आता है. डिफरेंस क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत होगा और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं होगा. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें. जहां हलंत लगाना है वहां हलंत लगाएं और जहां नहीं लगाना है वहां न लगाएं. तो छात्र विद्यालयं गच्छेत्, छात्र को विद्यालय जाना चाहिए. पुत्रौ माता पितरौ नमेतां, पुत्रौ द्विवचन है, पुत्रः पुत्रौ पुत्रः. द्विवचन यानी दोनों पुत्रों को माता पिता को नमस्कार करना चाहिए. ये फिगर के साथ ही सेंटेंसेस लिखे हैं. पेज नंबर 14 पे आपको देखना है. छात्रः अध्यापिकां नमेयुः, छात्रों को अध्यापिका को नमस्कार करना चाहिए. छात्र को विद्यालय जाना चाहिए. दोनों पुत्रों को माता पिता को नमस्कार करना चाहिए.
छात्रों को अध्यापिका को नमस्कार करना चाहिए। ये प्रथम पुरुष है, छात्रः पुत्रौ छात्रा, ये प्रथम पुरुष के करता है। अब आइए मध्यम पुरुष में, त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष के करता है। त्वम कदापि असत्यम मा वदेहि, तुम्हें कभी भी, कदापि दो शब्द है, संधि देखिए इसमें, कदापि का संधि विक्षेप होगा कदा धन अपि, यानी दो शब्द है, कभी भी, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कभी भी। त्वम कदापि असत्यम मा वदे, मा मीन्स मत, तुम्हें कभी भी असत्य मत बोलना चाहिए, यानी नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। युवाम उद्यानम गच्छेतम, तुम्हें बगीचे में जाना चाहिए, सॉरी, युवाम तुम दोनों को बगीचे में जाना चाहिए। तत्र च भ्रमेतम, और वहां घूमना चाहिए, भ्रम मीन्स घूमना, भ्रम धातु है यहाँ पर। तुम दोनों को बगीचे में जाना चाहिए और वहां घूमना चाहिए। यूयम पुष्पाणि मा त्रोटेत, तुम दो सबको फूल नहीं तोड़ने चाहिए, तुम सबको फूल नहीं तोड़ने चाहिए। केवलम पश्येत, केवल देखना चाहिए। फिर से देखें, तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम दोनों को बगीचे में जाना चाहिए और वहां घूमना चाहिए। तुम सबको फूल नहीं तोड़ने चाहिए, केवल देखना चाहिए। तो बच्चों ये मध्यम पुरुष की पंक्तियां थी। अब आइए उत्तम पुरुष पर। आवाम आपणात फलानि क्रीणीयाव क्रीडनि चान आनेव, आवाम हम दोनों को, आपणात बाजार से फल खरीदने चाहिए, हम दोनों को बाजार से फल खरीदने चाहिए। क्रीडन कानी खिलौने, चा मीन्स और खिलौने लाने चाहिए। हम दोनों को बाजार से फल खरीदने चाहिए और खिलौने लाने चाहिए। अहम तरण तालम गच्छेयम, मुझे तरण ताल जाना चाहिए, तरण ताल जिसे आप स्विमिंग पूल कहते हैं, मुझे तरण ताल जाना चाहिए। अहम तत्र तरेयम, और मुझे तत्र मीन्स वहां, तरेयम तैरना चाहिए। अब वयम क्रीडा क्षेत्रम गच्छेम, हमें खेल के मैदान में जाना चाहिए। तत्र वयम धावेम, तत्र मीन्स वहां, वयम हम सबको, वयम धावेम दौड़ना चाहिए, क्रीडेम चा और खेलना चाहिए, वहां हम सबको दौड़ना चाहिए और खेलना चाहिए। परंतु कलहम ना कुर्याम, परंतु कलह मीन्स झगड़ा, परंतु झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर से देखें, हम दोनों को बाजार से फल खरीदने चाहिए और खिलौने लाने चाहिए। मुझे तरण ताल जाना चाहिए और वहां तैरना चाहिए। हम सबको खेल के मैदान में जाना चाहिए और वहां दौड़ना चाहिए और खेलना चाहिए, परंतु झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के नीचे ही आप पेंसिल से इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से अपना वर्क करेंगे। हाँ बच्चों, पेज नंबर 15 पे देखें, स्वास्थ्य नियम। अब इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ देखें बच्चों, इसमें आप संकेत डालेंगे सुस्मिता से लेकर के लाभा तक। ये संकेत होगा, पहला संकेत ऊपर लिखना बच्चों, सुस्मिता से लेकर के, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और लाभा, यहां तक आप संकेत डालेंगे। पहले संदर्भ लिखें फिर संकेत, ठीक है, संदर्भ एक बार लिखना। तो इन पंक्तियों का अर्थ देखें, सुस्मिता, पितामही अहम चरणों नमामि, दादाजी मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। वो पितामह, हे पितामह, अहम नमामि, अहम मैं नमस्कार करती हूँ। दादाजी मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ, हे दादाजी मैं नमस्कार करती हूँ। पितामही आयुष्मती भव, आयुष्मती हो। भर्ता भरत, अहम अपि भवन्तो प्रणमामि, मैं भी भवन्तो मीन्स आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, मैं भी आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। उभव मीन्स दोनों। आयुष्मान भव, आयुष्मान हो। भर्ता भरत, पितामही भवती पितामहेन सह पुत्र गच्छति, दादी आप, भवती मीन्स आप, दादाजी
के साथ कहाँ जा रही हैं? दादी, आप दादाजी के साथ कहाँ जा रही हैं? पितामही दादी जी, वत्स मीन्स पुत्र। आवां भ्रमणाय उद्यानम गच्छावा, हम दोनों घूमने के लिए बगीचे में जा रहे हैं। सुष्मिता, युवां भ्रमणाय कदा गच्छता, तुम दोनों घूमने के लिए कब जाते हो? तो बच्चों, इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ आप पढ़ें और लिखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।